Hello everyone, this is Rashmi. Welcome to the channel and here is another video on complete paper solution of 18 June 2024. तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो चेक किया और उसमें जो प्रॉब्लम मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको क्लियर है. So here is the another video where we will solve some more question. And before moving ahead, there is one more good news for you that I am going to start a practice series that will continue until your examination, that is exam special series. Here we will discuss the most important MCQs of computer science paper 2. So those who are interested, do join my Telegram channel so that you will get the notification, you will get the PDF material and all. And ऐप डाउनलोड कर लीजिए. इन दिस ऐप यू विल गेट द फ्री मॉक टेस्ट अंटिल योर एग्जामिनेशन. ऑलरेडी द शेड्यूल ऑफ मॉक टेस्ट आई हैव शेयर्ड विद यू, बट जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया है स्टिल आप इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं. प्रीवियस मॉक टेस्ट की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. तो जस्ट आप ज्वाइन करिए, कंटेंट स्क्रॉल करिए एंड यू विल गेट द लिंक ऑफ previous जो भी mock test हुए हैं. Like you can see we have already conducted one mock test on unit 3 and 4, then unit 5 and 6, unit 7 and 8, and unit 9 and 10. So we have one more mock test on sorry, unit 9 and 10 we will have the mock test on 11th of August, and then unit 1 and 2 we will have the mock test on 18th of August. And what about after 18th of August? So there will be the full length mock test for all of you. All India full length mock test will be there, that is completely free. Download करना है ऐप को, ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, एंड देन यू कैन अटेंड ऑल दीज मॉक टेस्ट. करेक्ट. एंड yes, new batch for the December preparation is already started. So if you are interested, and it is not coming soon, now it has been started. So if you are interested and if you think you should go for the December examination, then you can start your preparation with me. And for more detail you can connect with me on my mobile number. And if you want to do self study for the December examination, then recorded course is also available for you. And the previous one is the live course where I am taking live classes for everything. So yes, decide your course, decide your exam, and give your best. So let's start with today's session. So what we were doing, we were solving the UGC NET June 2024 paper. And here is the question. So last question जो आपने solve किया था was this, correct? कि the chair of auditorium is arranged like this, and answer था हमारे पास. Now we have next question from the group theory. So in this question what they are asking, Z is a set of integer. Z is a set of integer and Z star operator, it is a group. It is a group when the operator definition is given by four different definition हमको given है. So with which definition we can say it will form a group. So this is the first option. ठीक है. Operator A, operator B, A operator B, A operator B, it should be equal to A plus B plus 2. We have to solve like this. तो सबसे पहले आप क्या चेक करते हैं कि whether the closure property is satisfied or not. Since it is the set of integer, take any two value from the integer. Suppose value of A is 2 and value of B is 3. The value of B is 3. So now in this case, when I will perform, I will put value here. So it will become 2 plus 3 plus 2, that is 7, which is again a integer value. So yes, a closure property satisfy होगा. Now second जो आपका है, that is called the associative. Association, sorry, addition है, definitely associative होता है. You can take another value 2 plus 3 plus 2, or you can say 3 plus 2 plus 2, you will get the same answer. तो definitely associative है. Now third condition जो हम check करते हैं, it is about the identity element. क्या ये identity element है? Do we have identity element? तो identity element का formula होता है A operator E, it should be equal to A. It should be equal to A. यदि मैं यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर रही हूँ E operator E, it should be equal to this. तो suppose what I am taking, E is the identity element. E is the identity element. So
how to calculate the identity element for this. So let's take a is a value, ठीक है, a is any member and ऑपरेटर आपको अप्लाई करना है विद आइडेंटिटी एलिमेंट। इस इक्वेशन के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट a प्लस e प्लस 2, a प्लस e प्लस 2। नाउ इट शुड बी इक्वल टू a, है ना, ये पूरा जो कैलकुलेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इट शुड बी इक्वल टू a, क्योंकि ऑपरेशन आप आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अप्लाई कर रहे हो। सो इट विल बिकम e प्लस 2 इज इक्वल टू a minus a, or e will be minus 2. Yes, we have identity element that is minus 2. आपका identity element इस केस में क्या बन रहा है, minus 2. Finally inverse of every element, inverse of every element possible है क्या? So देखिए again inverse की definition क्या होती है, a operator a inverse will give you the identity element, will give you identity element. So in this case, if I want to calculate, yeah, if I want to apply the operator over a and its inverse, then what is a inverse? So we have a plus a inverse plus 2 is should be equal to identity element, which is minus 2. Now a inverse will become minus 2 minus 2 minus a, or we can write a inverse will be minus a minus 4. So this is the a inverse for any इंटीजर वैल्यू। सपोज 5 के लिए इनवर्स निकालते हैं, 5 के लिए इनवर्स वैल्यू क्या होगी, पुट दिस वैल्यू, सो इट विल बिकम माइनस 5 माइनस 4, सो इट इज माइनस 9 इज द इनवर्स ऑफ 5, माइनस 9 इज द इनवर्स ऑफ 9। वेरीफाई कर लीजिए कि सही है या नहीं, इनवर्स वैल्यू सही है या नहीं। सो व्हेन आई विल परफॉर्म 5 operator on 5 minus 9, it will give me 5 plus minus 9 plus 2, that is 5 plus 2 7 minus 9 minus 9 plus 7, and that is minus 2, which is a identity element. So yes, this is the operator, ठीक है, ये जो आपका पहला ऑप्शन है it is the correct option. Yes, it is the group, एक ग्रुप है, ठीक है। सेकंड वन आप सीधे देखेंगे यहाँ पर आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। फॉर द थर्ड वन यू कैन सी कि इफ वी आर परफॉर्मिंग डिवीजन ऑपरेशन, तो जरूरी नहीं है कि a प्लस बी, लाइक इफ आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड वैल्यू ऑफ b इज 2, तो 1 प्लस 2 विल बी 3/2, इट विल बी 1/3/2 and 3/2 is not a integer number, तो यहाँ simply closure property ही satisfy नहीं होगी। Similar with the a square, we will not have the associative property, associative property will not get satisfied। ये आपका homework है, try करिए और मुझे बताइए whether I am correct or not। Now see the next question, yes, इस question में आपको करना है LPP प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिजाइन। तो सॉल्यूशन डिजाइन करने के पहले हमको यहाँ पर सॉरी हाँ यस, सॉल्यूशन डिजाइन करने के पहले हमें यहाँ पर प्रॉब्लम भी डिफाइन करनी है, प्रॉब्लम भी डिफाइन करनी है। सो एलपीपी प्रॉब्लम डिजाइन करना है और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर द important topic for the comprehensive question, so do check them as well. So see, सबसे पहले आपसे बोला गया a firm can produce the two type of clothes A and B, ठीक है, three kind of wool are required for it, say red wool, grain wool and blue wool. 1 unit length of a cloth is needs is 2 yard of red, ठीक है, यदि मुझे क्लॉथ एक ही यूनिट प्रिपेयर करना है, आई नीड कलर रेड विद 2 yards, 3 yards of the green wool and 1 unit of B will be required 3 yards of the red, 2 yards of the green and 2 yards of the blue. The firm has only stock of the 8 yards of red, a limit हो गई, सिर्फ इतना अवेलेबल है, ये आपका क्या हो गया, लिमिट हो गया। रेड कलर कितना अवेलेबल, रेड यार्ड्स कितने अवेलेबल है, ओनली 8, इट इज द लिमिट, मतलब जो भी यूटिलाइजेशन करना है इससे कम ही होगा। 10 yards of the green and 15 yards of the blue. It is assumed that the income obtained by the unit length of A and B clothes are 30 rupees and 50 rupees. तो देखिए सबसे पहले
first of all, we need to define the objective function. Objective function. Second thing, we will define the subject to constraints. Subject to constraints. And third thing we have to define here is the non-negativity constraints. So how to define the objective function? Objective function will be uh, it will be the like maximization of profit, it will be like minimization of cost. So here they are asking about the income, so definitely it will be the problem of maximization. ये कौन सा problem है? Maximization. They are using p, I will write p here. ठीक है, maximization profit. Now मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. अब प्रॉफिट किससे अर्न होगा? व्हेन वी विल सेल द यूनिट ऑफ ए एंड बी. अब यूनिट ए की कॉस्ट एंड यूनिट बी का जो प्रॉफिट है वो हमें दिया है. यू वन यूनिट लेंथ ए टाइप विल गिव यू 30 रुपीज एंड बी यूनिट ऑफ विल गिव यू वन यूनिट ऑफ बी विल गिव यू 50 रुपीज. तो यहाँ से ही आप प्रॉफिट डिफाइन कर दीजिए, है ना. इट विल बिकम 30. नाउ 30 क्या है? देखिए, हाउ मैनी वेरिएबल वी विल टेक. We will take two variables here because we have to produce two cloth item, है ना. तो ये आपके पास जो variables हो जाएंगे 30x1 for the item A. For A it will be x1 and for B it will be x2. So x2 50 x2. This is your maximization. ये आपका objective function बन गया. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है. अब बात करते हैं, अभी मैं सॉल्यूशन नहीं करवा रही हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको फंक्शन कैसे एलपीपी प्रॉब्लम डिजाइन करना है. तो भाई देखिए, यू वांट टू ऑब्टेन द इनकम फ्रॉम दीज टू एंड द यूनिट प्रॉफिट इज गिवन हियर. सो टोटल प्रॉफिट आपको 30 इंटू x1 या 30 इंटू x2 से मिल जाएगा, वेयर x1 एंड x2 आर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए एंड बी. नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए एंड बी. नाउ सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट के लिए द कंस्ट्रेंट देखो कहाँ लग रहा है. कंस्ट्रेंट इज एप्लीकेबल ऑन द yards that we are using. So if we want to design the A unit type A cloth, then how many yards of red color is required, how many yards of green color is required, and how much red color, how much blue color, how much green color is available. That is the limitation ना, that is the constraint. So पहला constraint हम लिखेंगे for the red color. For the red color. तो red color में आपको ये बताया गया कि for the red color, now 2 yards of red color are required for the cloth A. So I will write 2 yards. अब x1 किसको represent कर रहा है? x1 is representing the unit of A. So I will write 2x1 plus now and 2 yards of 3 yards of red wool is required for B. So देखिए, for the B I have taken x2. So यहाँ मैं लिखूंगी 3x2. 3x2. आप xy whatever like यहाँ हमने क्वेश्चन को यदि देखें तो क्वेश्चन में इन्होंने जो वेरिएबल यूज किए हैं वो इन्होंने x और y का यूज किया है. सो इंस्टेड ऑफ x1 और x2 आप x और y भी यूज कर सकते हैं. तो x और y की टर्म्स में यदि हम लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ p 30x plus 50y. पहला सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट फॉर द रेड कलर. फर्स्ट सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट फॉर द रेड कलर वी आर राइटिंग ए आइटम के लिए 2 yards आर रिक्वायर्ड. फॉर द बी आइटम 3 yards ऑफ द रेड कलर आर रिक्वायर्ड 3 by. नाउ हाउ मच red color is available? Only 8. So it should be less than 8. 8 से ज्यादा कंटेंट यूज नहीं कर सकते ना, 8 से ज्यादा क्लोथ आपके पास है ही नहीं. सो दैट्स व्हाई इट शुड बी लेस देन. नेक्स्ट आप कंस्ट्रेंट यहाँ डिफाइन करेंगे फॉर ग्रीन कलर, और फॉर ब्लू कलर, किसी के लिए भी. तो एक आप चाहो तो टेबल भी यहाँ डिजाइन कर सकते हो. लाइक यू हैव 2 आइटम है ए एंड बी से पर यूनिट जो प्रॉफिट हो रहा है वो 30 एंड 50 है. नाउ वी हैव 3 कलर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, है ना. तो इस टेबल को यदि आप डिजाइन कर लेते तो और भी आसान हो जाएगा. फॉर द ए यूनिट रेड कलर 2 यूनिट्स आर रिक्वायर्ड. ग्रीन कलर yes,
here we have 2 yards of red, 3 yards of green, 3 yards of green, and blue required नहीं है. For the B, 3 yards of red, 2 yards of green and 2 yards of blue is required. बस अब देखिए ग्रीन कलर का कंस्टेंट क्या बनेगा. वी हैव 3 yards फॉर A, so 3x plus 2 yards for B, so it will be 2y and it should be less than equal to how much green color is available, 10 yards, so it should be less than equal to 10. Finally for the blue we are only using in the B, so B के लिए variable है y, 2y and it should be less than equal to 15, or we can write y should be less than equal to 7.5. डन. ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट. फाइनली नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट क्या होते हैं, ऑल द वेरिएबल लाइक जो यूनिट है ए और बी की यूनिट, इट कैन नॉट बी जीरो ना, इट कैन नॉट बी लेस देन जीरो, इट कैन नॉट बी नेगेटिव. सो एक्स एंड वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से जो यहाँ पर पूछा गया है, इट इज अबाउट, देखिए जो हम डायरेक्टली सॉल्व कर पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अभी आपको बताया था मैक्स ऑफ पी इट शुड बी 30x प्लस 50y, है ना. आंसर हो गया ऑप्शन ए. ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी यूनिट लेंथ शुड बी यूज फॉर क्लोथ ए व्हेन द इनकम इज मैक्सिमाइज. फॉर दिस हमको ग्राफ सॉल्यूशन देना होगा. लेट्स डिस्कस दैट वन, बट अभी इसको सॉल्व कर सकते हो. इफ x यूनिट ऑफ लेंथ टाइप ए क्लॉथ्स एंड y यूनिट ऑफ लेंथ b क्लॉथ, देन कंस्ट्रेंट फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट. तो पहला कंस्ट्रेंट आपने यहाँ डिफाइन किया था. The first constraint for the red wool is 2x plus 3y. It should be less than equal to 8. For green color, red color, for green color it was 3x plus 2y should be less than equal to 10. And for blue color it should be 2y less than equal to 15, और इसको हम लिख रहे थे y should be less than equal to 7.5. So now you can check here. Y should be less than equal to 7.5, y should be less than equal to 7.5. Z ये तो पार्ट ही नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए. 2x plus 3y should be less than equal to 8 होना चाहिए. 2x plus 3y should be less than equal to 8 होना चाहिए. Now 3x plus 2x, no, 3y into 3, incorrect. 3x plus 2y should be less than 10. So हम आ जाते हैं ऑप्शन 2x plus 3y should be less than 8 and 3x plus 2y should be less than 10. Yes, option 2 is the correct answer. Option 2 आपका correct answer है. So yes, दो question तो आपने solve कर लिए. Now come back to the next question that we can solve here is directly is dual. Dual कैसे calculate करते हैं? तो देखिए this is the primal. First of all कुछ rules होते हैं. The rules are here like that. Maximization problem of डुअल ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इज मिनिमल. ठीक है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का डुअल मिनिमाइजेशन होता है. तो सबसे पहले मैक्स का मिन लिखिए एंड मिन शुड बी, प्लीज सृष्टि, मिन पी शुड बी, है ना, ये मिन पी. अब हमने क्या करना है कि लाइक यू कैन सी कि आप कंस्ट्रेंट ले रहे हो y x एंड y. सो हाउ टू कन्वर्ट इट ना, देखिए सबसे पहले आपका we will write down the new first of all we will write down the objective function. So how to calculate the dual? To calculate the dual of this, first of all what we will do, the coefficient of x and y, जो भी coefficient यहाँ लिखे हुए हैं इनको लेकर आप लिमिटेशन में डाल देंगे, कंस्ट्रेंट में डाल देंगे. देन जो आपका मिनिमाइजेशन इक्वेशन बनेगा दैट शुड बी द with the help of constraint. So I will write I should use the different variable. So 800 y1, 350 y2 and 150
y3. हमारे केस में कैसे सॉल्व होगा? एंड from this I will write down the new constraint. From this I will write like x1 x1 x1, इनसे मिलकर आपका नया constraint यहाँ पर define होगा. From this I will define the new constraint. हमारे केस में, ठीक है, हमारे केस में ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ z, it is equal to 30x plus 50y. Okay. Then subject to constraints are, it is 2x plus 3y, it should be less than equal to 8. Then 3x plus 2y should be less than equal to 10. And 2y should be less than 15. Now see, for the dual in this numerical, they are using u and v u and v, है ना, जो वेरिएबल की जो न्यू नेम यूज हो रहे हैं, दैट इज uvw. सो वी शुड यूज द सेम थिंग. तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे डुअल. यहाँ रूल्स गिवन है ना. So all the constraints are expressed in the form of equation. Only non-negativity constraints are written like this. And the right hand side of each constraint is non-negative. All decision variable are non-negative. The objective function either maximization or minimization function. So this is what characteristics of standard LPP. Characteristics of standard LPP यहाँ पर दिया हुआ है. And these are the rules. ठीक है, here is the rules how to obtain the dual. How to obtain the dual. So every primal constraint there is a dual variable and vice versa. If primal is the maximization problem, dual is a minimization. If primal is the minimization problem, then dual is a maximization problem. The objective function coefficient of jth primal वेरिएबल इक्वल टू द राइट हैंड साइड कंस्टेंट. आपको बताया राइट हैंड साइड कंस्टेंट आप दोगे यहाँ पर. एंड राइट हैंड साइड कंस्टेंट ऑफ द ith primal इक्वल टू द ऑब्जेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ डुअल. एंड कोफिशिएंट aij in the primal are the transpose of the dual. Simply solve it. So now what we will write, it will become the problem of minimization. ये आपकी क्या प्रॉब्लम बन जाएगी? द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. And now this is what the constraint. So it should be 8u plus tan v plus 15w plus 15w. ठीक है, ये आपके कोफिशिएंट बनेंगे. नाउ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू x. सेकेंड फर्स्ट सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आप लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू x. सेकेंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू y. तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रेंट बनेगा, इट विल बी 2 into u 3 into v. 2 into u plus 3 into v and it should be greater than equal to 30. ये आपके लिमिट होंगे, ये आपके कंस्ट्रेंट हो जाएंगे. नेक्स्ट वी हैव विद रिस्पेक्ट टू y, सो इट विल बिकम 3y. 3y की जगह हमको लिखना है 3u plus 2v plus 2w and it should be, देखिए यहाँ लेस देन का साइन था, so we should use greater than 50. it should be 50. finally u v w all should be greater than equal to 0. so your answer will be, ठीक है, यहाँ आंसर आपका क्या मिल जाएगा आपको? ऑब्जेक्टिव फंक्शन सिर्फ चेंज करना था, so it should be min of p and 8u plus tan v plus 15w. ठीक है, डुअल के फॉर्म में ये रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल मटेरियल द मैक्सिमम इनकम. सो फॉर दिस वी शुड अप्लाई द ग्राफ मेथड. ठीक है, अच्छा हमको यहाँ पर क्या अप्लाई करना होगा? ग्राफ मेथड. ग्राफ मेथड यू आर फैमिलियर विद दैट कि लाइक व्हाट वी हैव टू डू. हमारे पास दो लाइन है. द फर्स्ट लाइन इज 2x1 3x2 and it should be less than equal to 8. we have three lines, 3x1 2x2, इनको इक्वलिटी में लिखते हैं. ठीक है, ये आपका इक्वलिटी में कन्वर्ट करना होगा. सो इट विल बिकम 8, इट विल बिकम 10 एंड 2x2 it will become equal to 15. तो इसको तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो x2 equal to 7.5. now suppose it is x1, this is x2, तो 7.5 इस तरीके से पैरेलली आपकी
क्या हो जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, 7.5 दिस इज x2 लाइन। ठीक है, ये तो सिंपल सा लाइन था आपका। और देन वी हैव दीज टू लाइन्स। तो जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, so for the first line I have the end points, और end point जो मुझे मिल रहे हैं, ठीक है, after simplifying this line it will be, I'm taking red color for this one, so ये आपको मिलेगा 2x1 plus 3x2 इक्वल टू 8। फर्स्ट x1 इज 0, देन x2 आपको क्या मिल जाएगा, 8/3। सिंप्लीफाई करिएगा, एंड इफ x2 is 0, then x1 will become 4. So 4 0. So we have 2 points. First is 4 0 and second is x 0, 8/3, 8/3 and 4 and 0. Now we have next line आपकी क्या बन रही है, 3x1 plus 2x2 it should be equal to 10. 3x1 plus 2x2 it should be equal to 10. Now put the value, x1 is 0, x2 will become 5, and then put this value x2 is 0, then x1 will become 10/3। ठीक है, तो अब आपके दो एंड पॉइंट क्या हो गए, 0 and 5 and 10/3 and 0। नाउ ड्रॉ इट। ठीक है, इनको हम जब ड्रॉ करेंगे, सो लाइक फर्स्ट पॉइंट इज 4 0, एक्स कोऑर्डिनेट आपका ये हो जाएगा 4 and 0, इट इज 4 and 0। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आपका बन रहा है 0 and 8/3, अप्रोक्सीमेटली 2 point समथिंग। सो सपोज इट इज 1 2, यहाँ हम कुछ ले लेते हैं 2.3, सो लाइक ड्रॉ इट। सो इट विल बी 0 and 8/3, and next line will be this 0 and 5, so it is 0 and 5, ये आपका जा रहा है 7.5, तो हम यहाँ जूम कर लेते हैं कि नीचे आपका कहीं 5 है, so it is 0 and 5, and next point is 10/3, that is 3.3 something, so 3.3 कुछ यहाँ अंदर होगा, है ना, तो इस तरीके से आपका लाइन ड्रॉ होगा 10/3 and 0 का। तो ना देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट आपको कौन सा फिजिबल एरिया मिल रहा है, द फिजिबल एरिया इज दिस वन, दिस एंड दिस, है ना, इस रीजन को आप फिजिबल रीजन बोलेंगे। तो हमको सिर्फ कितने पॉइंट्स पता होना चाहिए, हमको पॉइंट पता है दिस इज 0 0, यस, दिस पॉइंट इज 10/3, ठीक है, एक इस पर कैलकुलेशन होगा, एक कैलकुलेशन 0 and 8/3 पर होगा, and one calculation we have to do the intersection of these two line, इन दो लाइन के इंटरसेक्शन पर करना होगा। so when you will solve this intersection, जब आप इस इंटरसेक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप when you will solve this intersection point, so यहाँ पर आपको एक नया पॉइंट मिलेगा, it will be आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं भाई, वी हैव 2x1, इक्वेशन लिख लेती हूँ मैं, ठीक है, वी हैव 2x1 प्लस 3x2 इट शुड बी इक्वल टू 8, एंड दूसरा इक्वेशन है 3x1 प्लस 2x2 इट शुड बी इक्वल टू 10। किसी एक को चेंज कर ले, सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ 3, so it will become 6x1 and with this is 2, तो ये हो जाएगा 6x1 plus 9x2 equal to 59, intersection of these two point। yes, मैं डायरेक्टली इसको लिख देती हूँ, जो intersection of these point, x का वैल्यू आपको मिलेगा 2.8 and the value of y will be 0.08। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिलेगा। नाउ फाइनली व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम इनकम। तो वी हैव 4 पॉइंट नाउ। ठीक है, आपके 4 पॉइंट कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज 0 0, सेकेंड पॉइंट जो आपने यहाँ पर लिया था, सपोज इट्स नेम इज ए, दैट इज 10/3, ए हो गया, इसको ये दे देते हैं, दिस इज बी सी एंड डी। ठीक है, ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट कितना है 2.8 and 0.8। so now put these value, ठीक है, put these value into the maximization of p। so maximization of p आपको given है
30 30x 30x1 मैंने x1 y1 के टर्म में किया है इसलिए 50x2. सो पॉइंट है 0 0 10/3 एंड 0 0 and 8/3 0. Here we have 0 and 8/3 and one more point is this one. So ये आपका आ जाएगा 0 and 8/3 finally 2.8 and 0.8. ठीक है. Now put this value, it will be 0. यहाँ value आप put करेंगे. Now put the second value, so 30 equal to 30 into 10/3 cancel out होगा, value बनेगा 10. Second case में 30x1 is 0, 50 into 8/3 50 into 8/3 सिंप्लीफाई कर लेंगे. फाइनली वी विल पुट दिस वैल्यू और यहाँ पर आपको आंसर मिलने वाला है 124. 30 into 2.8 plus 50 into 0.8. So when you will simplify this, you will get 124 is the answer. That is the maximum profit we have. ये आपका maximum profit है. And then we have, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया था, एक लास्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ क्लॉथ ए व्हेन द इनकम इज मैक्सिमाइज्ड. इनकम मैक्सिमाइज हो रही है 2.8 एंड 0.8 पर. सो 2.8 इज द मैक्सिमम रिजल्ट. ठीक है, मैक्सिमम रिजल्ट क्या है, 2.8 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ ए इज रिक्वायर्ड. आंसर बनेगा ऑप्शन 3. ठीक है, रेस्ट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व. सो दिस वाज योर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन. ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था. आपको लगता है कि आपको क्लियर हुआ तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें एंड इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें. नाउ वी हैव यूनिट 2. यूनिट 2 की यदि हम बात करें, सो इन यूनिट 2 वी हैव यूनिट 2 that is CSO. ठीक है, the first question, the least value of signed and unsigned data type variable requiring the 8 bits. 8 bits के लिए आपके पास जो नेगेटिव नंबर, जो मिनिमम अनसाइंड नंबर होगा, दैट विल बी द नेगेटिव. सो इसको हम कैलकुलेट करते हैं 2 power n-1 से. सो वी विल हैव -2 power 8-1, it will be -2 power 7, that is -128. एंड अनसाइंड है मतलब पॉजिटिव डेटा है. पॉजिटिव डेटा में जो मिनिमम नंबर होगा वो होगा 0. सो आंसर है आपका ऑप्शन 4. आंसर आपका क्या है, ऑप्शन 4. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीक्वेंशियल सर्किट? फ्लिप फ्लॉप, मल्टीप्लेक्सर, काउंटर, डिकोडर, एडर. sequential circuit are the circuit which have the memory element. ठीक है, sequential circuit कौन से सर्किट होते हैं जिसमें memory element होता है? flip flop itself a memory element. Counter, it uses the flip flop, so it is a it having memory element. Anything else? No. तो आंसर क्या होगा? You should have the answer A and C. A and C is the correct answer. Now द इंस्ट्रक्शन लोड एक प्री वाई क्यू है, मैंने अपने प्रैक्टिस सेशन में आपको सॉल्व भी करवाया था. विच इज इक्विवेलेंट टू दिस एंड दिस. तो ये क्या है? इट इज इंडेक्स रजिस्टर. इंडेक्स रजिस्टर का यूज कर रहे हैं तो कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा? इंडेक्स एड्रेसिंग मोड. ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एज इट इज रिपीट हुआ है. नाउ अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट. भाई हमेशा पढ़ाया है, रजिस्टर जो होते हैं वो सबसे फास्ट होते हैं, फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट. फास्टेस्ट इज रजिस्टर. सी से ऑप्शन स्टार्ट करना है, सी से स्टार्ट करना है. एलिमिनेट दीज टू. नाउ सी के बाद बी होगा या डी होगा, आपको डिसाइड करना है. इट इज एस रैम और इस इज द मैग्नेटिक टेप. तो रैम इज ऑब्वियसली फास्टर देन द टेप, सो हमारा आंसर है ऑप्शन 2. इट इज सी बी ए डी ई. ठीक है, रजिस्टर, रैम, डी रैम, then you have magnetic tape and hard disk. Next we have match the following, complement, XOR, accumulator, control unit. एडर कैसे लिखते हो? A XOR B है ना, A XOR B. यदि आपको 3 बिट इनपुट का एडर लिखना है तो A XOR B XOR C. सो इट इज XOR ऑपरेशन. इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग मतलब
इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग किस में करते हैं, कंट्रोल यूनिट करेगा या एक्यूमुलेटर करेगा, ठीक है। एक्यूमुलेटर यूज होता है, इट इज द रजिस्टर यूज बाय द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट, it is used for the instruction decoding and complement is a negative number representation। सिर्फ एक ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट इज द नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन 2 है ना। बस आपको सॉरी इट इज ऑप्शन 3 भी मैच कर रहा है। सो एक्सॉर इज एडर, यस दिस इज द आंसर, ऑप्शन 3 इज द आंसर, ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, एक्सॉर इज एडर। नाउ सी dual of boolean expression, dual of boolean expression। so see कैसे कैलकुलेट करते हैं, we have only two rules for it, we have only two rules for it। फर्स्ट रूल, यदि प्लस साइन है तो डॉट में कन्वर्ट कर दो, यदि डॉट साइन है तो प्लस में कन्वर्ट कर दो। एंड सेकेंड रूल, यदि वन है तो जीरो बना दो, यदि जीरो है तो वन लिख दो। डन। तो पहला देखिए x डॉट क्या लिखूंगी, x प्लस इन ब्रैकेट, इन ब्रैकेट इट शुड बी y, y प्लस का क्या करना है, वन करना है, प्लस की जगह डॉट होगा, जीरो विल बी वन। सो x प्लस वाई इंटू वन, यस ऑप्शन 2, a is 2, a is 2, yes we have two option, आप ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। नाउ सेकंड वन, वी हैव x कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट डॉट की जगह प्लस, वन की जगह जीरो, देन प्लस की जगह डॉट, देन y कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट प्लस की जगह डॉट, z will be as it is। है कोई आंसर? सो यस इट इज द ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन 1, b is 1, b is 1, okay done। now this one x complement dot, now you have y complement, y complement डॉट, डॉट था इसको प्लस लिख दो, y complement x complement डॉट की जगह प्लस, y complement प्लस की जगह डॉट एंड जीरो की जगह वन। सो ये आपका आया x complement प्लस y complement 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इज द आंसर। फाइनली x डॉट की जगह प्लस वन, प्लस वन की जगह जीरो एंड प्लस की जगह डॉट, देन y प्लस की जगह डॉट एंड z complement। So it is your option 4। So this is your answer, option 3 is the correct answer here, option 3 आपका correct answer बनेगा। Next, the IO method in which the memory address and IO address are distinct is called, जिसमें मेमोरी एड्रेस एंड आईओ एड्रेस डिस्टिंक्ट होते हैं, वी हैव टू अप्रोच, आइसोलेटेड अप्रोच जिसमें क्लियरली आपको, आइसोलेटेड का मीनिंग ही यही होता है कि मेमोरी एंड आईओ एड्रेस सैंपल होंगे, सॉरी सेपरेट होंगे। एंड सेकंड इज योर मेमोरी मैप। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है, इट इज ए एंड बी, ए एंड बी। नाउ टेक्निक फॉर परफॉर्मिंग द आईओ, इनपुट आउटपुट के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज होती है? यस वी हैव प्रोग्राम्ड आईओ, वी हैव इंटरप्ट आईओ एंड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। रैशनल आईओ, चैनलाइजेशन आईओ इज नथिंग लाइक दैट। सो ऑप्शन है आपका ए, बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। नाउ वी हैव next question, the instruction add r1 a and b, add r2 c and d, multiply x r1 plus comma r2, evaluate this expression, कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ है? so obviously it is 3 address instruction, we are using 3 address instruction। इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए आपने इस तरीके से लिखा है, फर्स्ट एड्रेस, सेकंड एड्रेस, थर्ड एड्रेस, फर्स्ट एड्रेस, सेकंड एड्रेस, थर्ड एड्रेस। so it should be 3 address instructions। the boolean expression for the following would be, here we have the variable a, b and c, here we have the variable a, b and c, 0 and 1, 0 0 0 1 1 1 1 0। now put these value, don't care condition से solve करना है, put these value, 0 is 1, 0 1 2 is 1, then 4 3 4 5 6 is 1, ठीक है। now don't care condition है, this is 1, 3 is 1, क्रॉस कर दीजिए, and 5 क्या होगा, we have 4 5, this is the 5।
सो ग्रुपिंग कैसे होगा, 4 का ग्रुपिंग तो पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पर किस तरीके से ग्रुपिंग करेंगे. फर्स्ट ग्रुपिंग विल बी दिस वन, एक ग्रुपिंग आपकी ये आएगी, ठीक है. एंड अनदर ग्रुपिंग, जस्ट अ मिनट, इसको आप क्या करोगे, रैपिंग ऑफ कर दोगे, ठीक है. दिस इज द रैपिंग. तो जैसे ही रैपिंग होगा, दिस वन इज द अनदर ग्रुपिंग ऑफ 4, ठीक है. ये 4 का ग्रुपिंग होगा, सॉरी. सो वी हैव टू ग्रुपिंग, फर्स्ट ग्रुपिंग इज दिस वन एंड वन इज दिस वन. सो नाउ सॉल्व दिस वन. फ्रॉम दिस, लाइक यू कैन सी, ओनली ए कॉम्प्लीमेंट इज पॉसिबल, है ना. जीरो है तो ओनली ए कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल है, बाकी बी एंड सी इज चेंजिंग. फॉर दिस वन, 1 and 0, 1 0 का मतलब क्या है, b is b and c is complement. तो आंसर है ऑप्शन 4, ठीक है. ऑप्शन 4 इज द सॉरी करेक्ट आंसर. यहाँ आपका ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर बनेगा. मैंने गलत लिखा हुआ है, b and a कॉम्प्लीमेंट c नहीं होगा, इट शुड बी a कॉम्प्लीमेंट प्लस bc कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ऑप्शन 4. इसको आप चेंज कर लेना, इट शुड बी दिस वन. नाउ अ कंप्यूटर कैशे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था. अ कंप्यूटर system with a cache access of 100 nanosecond, man memory access time of 1100 nanosecond, hit ratio is 0.9, then average access time. क्या करना है भाई, 0.9 into सुपर सिस्टम कैसे एक्सेस एवरेज एक्सेस टाइम पूछा गया है. सो 0.9 को मल्टीप्लाई कर दे 100 से, प्लस 0.1 को मल्टीप्लाई कर दे 1100 से, यू विल गेट द आंसर. यू विल गेट द आंसर. तो आंसर यहाँ पर आ रहा है 200, ठीक है. इट इज 90 एंड इट विल बी 110. सो हमको यहाँ पर आंसर मिलेगा 200, ठीक है. इट विल बी 200. नाउ सी, for making the memory of size 2048 bytes by using the chip of this size, number of chips are required. Number of chips are required. So basically देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम दोनों गिवन वैल्यू को, आपको बोला गया कि यू हैव टू डिजाइन how much memory, we want to design the memory of size 204 byte, ठीक है, 2048 byte. So 2048 byte को हम क्या लिख सकते हैं, we can write 2 power 11 bytes, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 power 11 into 8 bits. yes yes, ये कन्वर्ट हो गया जिस फॉर्मेट में हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है, जिस फॉर्मेट में हमको रिक्वायर्ड है. एक क्रॉस 8 तो आपका साइज होता है. नाउ वी हैव 128, लाइक यू कैन सी कि रैम का साइज कितना दिया हुआ है, 128 क्रॉस 8. सो अब इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इट इज ऑफ 4 बाइट ना, 128 ये बनेगा आपका 2 पावर 11 इंटू 2 पावर 3 एंड इंटू 8, और नेक्स्ट ये चीज हो जाएगा आपका 2 पावर 7 into 2 power 2 into 8, है ना. इट विल बी 8 बिट्स. सो फाइनली हम जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, when we will simplify them, इट इज ऑफ बाइट. इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ. चलिए नेक्स्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन प्लस दिस यूनिट आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन. So thank you for your time. Thank you everyone. Please do share this video, and next video will be coming very soon. So all the very best. Thank you, and do share this video if you like this one. Please like करें. Thank you.